Today we'll talk about the double sideband. Suppressed carrier. डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर. ठीक है, इसको कैसे जनरेट करना है इसके बारे में अपन बात करते हैं. तो जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है? जनरल एक्सप्रेशन फॉर डीएसबी-एससी सिग्नल क्या होगा? सिग्नल डीएसबी-एससी is empty into CT. This is basically empty into CT. This is called as the DSB-SC signal. This is general expression for the DSB-SC signal. Clear? Now, यहाँ पे इस सिग्नल को अगर अपन ड्रॉ करें तो अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं. यहाँ तक लिखिए एक बार आप. इस एमटी और सीटी देखिए. सीटी क्या है? सीटी इज AC cos 2 pi f CT. इसको यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट S DSB SC इक्वल टू AC MT cos 2 pi f CT. ठीक है. और अगर इसको AC MT cos 2 pi f CT, अगर इसको अपन मॉड्यूलेशन इंडेक्स मॉड्यूलेशन थ्योरम से अगर अपन देखें तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? सपोज दिस इज योर MT, दिस इज योर MF. ठीक है, दिस इज योर MF and this is your carrier. And this is C of F. This is carrier. दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो नई स्ट्रक्चर आएगी दैट इज SDSB-SC सिग्नल, उसका नेचर कैसा होता है? दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, एंड नाउ व्हाट विल बी हैपन? देयर विल बी टू साइड्स लाइक दिस. दिस इज द FC. FC पे शिफ्टिंग होगी MT की. दिस इज FC minus FM, FC minus FM, and this is FC plus FM. And here same replica will be there. This is minus FC, this is minus FC plus FM, and this is minus FC minus FM. Clear? Now, this is a double sideband. Double sideband इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर सपोज इसमें जो इंफॉर्मेशन है वही सेम इंफॉर्मेशन आपकी इसमें है. क्लियर? तो होता क्या देखो. This is called as upper sideband USB. This is called as LSB. Same here, this is USB and this is lower sideband LSB. Clear? So these are the bands. यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो सेम इंफॉर्मेशन ही है जो यहाँ पर. अब डबल साइड बैंड है तो है, पर कैरियर नहीं है इसमें. नो कैरियर हियर. दिस इज SDSB-SC. नो कैरियर. यहाँ पे किसी तरह की कोई कैरियर नहीं है, केवल डबल साइड बैंड जो इंफॉर्मेशन वाला है वही आपको मिलता है. तो उसको ड्रॉ कीजिए. दिस इज डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर. यहाँ से एक चीज और निकाल लेते हैं, बैंडविड्थ. बैंडविड्थ कितनी आ जाएगी? हाई फ्रीक्वेंसी माइनस लो फ्रीक्वेंसी. FC plus FM minus FC minus FM, that is 2FM. Bandwidth requirement is same as AM. Bandwidth requirement is same as AM. Now, लिख लीजिए इसको एक बार. ठीक है.
लिख लिया. This is a spectrum for, this is a frequency spectrum basically for DSB-SC signal. Clear? The frequency spectrum for DSB-SC signal. No, no, running fine. Okay. Next. Now we will talk about the single tone DSB-SC. Single tone DSB-SC. In single tone DSB-SC, what will be happen? In single tone DSB-SC, there will be MT is equal to a single tone signal like AM cos 2 pi FMT is a single tone signal. C of T is AC cos 2 pi FCT. Now, as DSB-SC signal is AM into AC into cos 2 pi FMT into cos pi FCT. ठीक है. Now, अब cos A cos B ये वाला अगर फॉर्मूला लगाएं अपन cos A cos B वाला तो we will get like this M into AC by 2 कॉमन ले लिया 2 cos 2 pi FC plus FM into T plus M into AC by 2 cos 2 pi FC minus FM into T. This is the expression for the DSB SC. Clear? This is the expression for the DSB SC. Write it. This is the derivation for single tone DSB SC signal. Done. This is called as the LSB, and this is called as the USB, and this is called as the LSB. स्पेक्ट्रम कैसे होगा इसका? अगर स्पेक्ट्रम की बात करें, this is the 0. Now this is FC minus FM, and this is FC plus FM. Same replica will be this side. This is the spectrum, and this will be AC into AM into AC by 4. Okay, it is the magnitude. Clear? So this is the spectrum for S DSBS. Write it, note down it. Then we will move toward the next problem. Done? Note down the things. This is the expression for DSBSC. DSBSC. Next. Power in DSBSC. देखिए पावर की बात करते हैं तो सबसे पहले एक्सप्रेशन पे ध्यान देना पड़ेगा. दिस एक्सप्रेशन, इसका एक पावर होगा, यूएसबी का एक पावर होगा और एलएसबी का एक पावर होगा. यूएसबी का पावर के लिए दिस मैग्नीट्यूड पीक मैग्नीट्यूड एसी स्क्वायर, दिस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बाय 2r, और इधर भी इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर बाय 2r, जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं. तो होगा क्या, पी यूएसबी या पी एलएसबी, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, इज इक्वल टू एम into AC by 2 का होल स्क्वायर, दिस मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर अपॉन 2r. और यहां से अगर r इज नॉर्मलाइज ले लिया, r इज इक्वल टू 1 ओम, तो P
USB is equal to PLSB is equal to M square into AC square upon 8R. This will be, this is the PM. सर R की वैल्यू तो 1 ले लेना अपन है तो अपॉन 8. नाउ टोटल पावर कितना हो गया? दैट इज PUSB प्लस PLSB और ये हो गया PT इज इक्वल टू M स्क्वायर AC स्क्वायर बाय 4, द टोटल पावर. क्लियर? और टोटल साइड वेंट पावर, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू PT इज इक्वल टू टोटल साइड वेंट पावर, क्योंकि कैरियर तो है ही नहीं, तो टोटल साइड वेंट पावर इज PT, टोटल साइड वेंट पावर इज दिस एंड दिस इज इक्वल टू PT. तो अगर नीटा की बात करें, तो अगर अपन नीटा की बात करते हैं, नीटा क्या होता है? टोटल साइड वेंट पावर अपॉन टोटल पावर. तो दोनों तो बराबर ही है, दैट इज इनटू 100%. इन परसेंटेज कितना होगा? 100%, because both are same. Both are same. This value and this value is same for DSP-SC. Note down the things. Note down the things. लिखिए अपनी कॉपी में. लिख लिया आपने? Note down the things. इसको लिख लीजिए. Have you note down? Now, next is, लिख लीजिए एक बार इसको, फिर अच्छे से समझते हैं आगे. Question, I'm giving question. Question लिखिए. Carrier of carrier of 20 root 2 cos pi into 10 की power 60 is DSP-SC modulated by a message signal of 20 root 2 2 root 2, sorry, this is 2 root 2 cos pi into 10 की power 3t. Find all the parameter related to DSP-SC modulated signal. Try to solve it. I'm giving few minutes to you. Try to solve it. Try to solve it. It's very simple question.
If you solve it, it's very simple question. First, extract the data. What is given in the question? What is given in the question? What is given in the question? First, extract the data. A carrier of 20 root 2 cos, compare it with AC cos 2 pi FCT, and compare this with this is the AM cos 2 pi FMT. You will get AC is equal to 20 root 2, AM is equal to 2 root 2, AM is equal to 2 root 2, FC is equal to इसको 2 पाई FCT से कंपेयर करोगे तो दिस इज 500 किलो हर्ट्ज, ठीक है, एंड इसको कंपेयर करोगे दिस तो दिस इज FM is equal to 500 hertz. So these are the data given. Now we can calculate anything because this is the fundamental data which is required for any parameter to calculate. Clear? This is given. तो हमें कैलकुलेट क्या करना है भाई? कैलकुलेट करना है सबसे पहले बैंडविड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं अपन. बैंडविड्थ फर्स्ट पैरामीटर. बैंडविड्थ क्या होता है? 2 into FM सिंगल टोन के लिए. तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 into 500 हर्ट्ज, that is 1 kilohertz. This is the bandwidth of DSBSC. Then दूसरा पैरामीटर पावर पैरामीटर, टोटल पावर m square AC square by 4 if R is not given, R is taken as 1. कितना आएगा भाई? 20 root 2 whole square into 2 root 2 whole square upon 4. What will you get? PT is equal to, you will get 1600 watt. 1600 watt. और PLSB और USB इसका आधा हो जाएगा क्योंकि DSBSC में और तो कोई पावर होता ही नहीं है, 2 ही पावर होते हैं, तो ये हाफ हाफ होती है. 800 वाट. इफिशियंसी कितनी होती है? इफिशियंसी सर नीटा तो 1 होता ही है हमेशा ही, यानी 100%. क्लियर? राइट इट. That's very easy question to get the confidence in the DSBSC. लिख लीजिए इसको अच्छे से, नोट डाउन इट. नहीं हिम्मत भी नहीं हो रही, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चिल्ला नहीं रहा हूं ना मैं. बच्चों को तो चिल्लाना भी पड़ता है, अदरवाइज आवाज तो आराम से जाती है. ये कला सीख ली ना अगर. चलो एनीवे. हेलो. Next, suppose if you talk about the multi-tone, DSBSC. अगर हम मल्टीटोन DSBSC की बात करेंगे तो क्या होगा? देखिए, हो सकता है यहाँ MT जो है उसमें 2 चीजें हो. सपोज AM1 cos 2 pi FM1 into T plus M2 cos 2 pi FM2 into T. And suppose
it is given then fm2 is greater than fm1 and m2 is greater than m1, it is given. now अब सेम एक्सप्रेशन रहेगा, वही रहेगा, एस डीएसवी एस सी इक्वल टू वही एम टी इंटू सी टी. सेम सी टी इज सेम, सी टी क्या है, सी टी इज इक्वल टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी. नाउ अब इनको मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट आएगा वो उसमें क्या होगा, दो पार्ट आएंगे, क्योंकि ये वाला भी और ये वाला भी, तो वो अपन उसमें नहीं जा रहे. लेकिन उसमें क्या ध्यान रखना है, मल्टीटोन में ध्यान रखना है कि बैंडविड्थ जो होगी, जो बैंडविड्थ होगी वो तो अपन जानते हैं क्या होती है, 2 इंटू एफ एम होती है ना, एफ एम बस. बट दिस विल बी 2 एफ एम टू इफ एफ एम टू इज ग्रेटर देन एफ एम वन. कितनी भी वेव हो जो मैक्सिमम होगी, तो जनरलाइज ऐसा कर सकते हो 2 इंटू एफ मैक्सिमम ऑफ कौन से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एफ मैक्सिमम जो होगा वही पावर. कुछ चेंज पावर में भी आएगा. डेरिवेशन अपन सिंगल टोन में कर चुके हैं, बस यहाँ पे सीधे में केवल फॉर्मूला में जो चेंज है वो बता रहा हूँ आपको. दैट इज AC स्क्वायर अपॉन 4R टोटल पावर M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर. क्लियर? so this is the total power PT. it is a simple change, nothing else. लिख लीजिए इसको, इन दोनों फॉर्मूलों को. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. दिस इज DSVSC, दिस इज फॉर DSVSC, और वो भी कौन सा, मल्टीटोन DSVSC. लिख लीजिए इसको. DSVSC सिग्नल. लिख लिया आपने? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक तो सॉल्व कीजिए. क्वेश्चन इज लाइक दैट, a carrier signal 10 cos 4 pi into 10 to the power 6t is DSP double side band. Sometimes it is also known as DSP. जरूरी नहीं आगे ऐसे लिखा हो. Modulated by a message signal of 6 cos 4 pi by of 6 cos 4 pi into 10 to the power 4 10 to the power 4 .
प्लस 8 cos प्लस इट इज 14, ठीक है, 4 पाई इंटू 10 की पावर 14 प्लस 8 cos पाई इंटू 10 की पावर 5 टी इंटू 10 की पावर 5 टी को 4 लिखिए आप, है ना, अदरवाइज कंफ्यूज होंगे अपन। इट इज पाई इंटू 10 की पावर 4 लिख लीजिए इसको, पाई इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। दिस इज टी ऑफ 10 की पावर 4 टी, फाइंड ऑल पैरामीटर्स। दिखने से ही पता लग रहा है कि मैसेज सिग्नल में दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट, यानी ये मल्टीटोन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? मल्टीटोन। मल्टीटोन के अकॉर्डिंग सोचिए आप इस पे। पहला पैरामीटर बैंडविड्थ कितनी हो सकती है, सोचिए। टेक योर टाइम, फाइंड बैंडविड्थ, देन पावर, टोटल पावर। इन दोनों चीजों को कैलकुलेट कीजिए। दीज आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर, बैंडविड्थ एंड टोटल पावर। और इसको अगर थोड़ा सा ठीक कर ले तो हम दोनों को 2 पाई कर लो, ताकि आसान रहेगा प्रॉब्लम, है ना। अदरवाइज आप थोड़ा सा ऐसा रहेगा, दिस इज 2 पाई इंटू 10 की पावर 4t, दिस इज 2 पाई इंटू 10 की पावर 5t, ठीक है। तो 10 की पावर 4t और 10 की पावर 5t। नाउ सबसे पहले इस मैसेज सिग्नल में कंपेयर करते हैं अपन। इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो FM1 कितना आ रहा है? 2 पाई FCT, FC यानी सॉरी 2 पाई FMT 10 की पावर 4, एंड FM2 इज 10 की पावर 5, ठीक है। एंड if this is FM2 and this is FM1, then find the bandwidth. Bandwidth is 2 FM. Bandwidth is 2 FM. 2 into 10 की power F maximum. That is 2 into 10 की power 5. Got it? This is the hertz. This is the bandwidth. This is your bandwidth. And power कैसे कैलकुलेट करेंगे? How we calculate the power? That's very easy. Power को कैलकुलेट करना तो और आसान है। तो bandwidth आ गई, power कैलकुलेट करते हैं। PT is equal to AC square upon 4 AM1 square प्लस AM2 स्क्वायर, यही है। तो AC कितना दिया हुआ था? AC जो दिया हुआ था दैट इज 10, AC was 10 square by 4, 1 plus 6 square plus 8 square given in the question. You solve it. If you solve it, you will get PT is equal to कितना आ रहा है आपका? PT is equal to 2500 watt, 2500 watt. PT is 2500 watt. क्लियर है? अगर मैं कहूं कि केवल PUSB कितना है या PLSB कितना है, तो केवल साइड बैंड पावर ही होता है इसमें, तो DSB में तो और कोई पावर नहीं, तो आधा आधा हो जाएगा कि अपन ये मान लें कि इनमें दोनों में नहीं। दिस इज द 1250 वॉट, दिस इज 1250 वॉट PLSB USB। क्लियर? हाँ, लेकिन अगर क्योंकि दो सिग्नल में है, यहाँ दो सिग्नल है LSB के, तो अगर आप कहोगे PUSB1 कितना होगा इजिकल टू PLSB1 कितना होगा, दोनों में सेम होगा, लेकिन कितना होगा? दैट इज वेरी इजी, M स्क्वायर
सॉरी AC स्क्वायर, ये तो अपन ने पढ़ा हुआ फॉर्मूला AM1 स्क्वायर अपॉन 4, तो निकल जाएगा इसका 10 स्क्वायर इंटू AM1 स्क्वायर 6 स्क्वायर अपॉन 4, कितना आएगा? दिस विल बी 8 आता नहीं, दिस इज 8 सॉरी, दिस वाज द 8 अकेले LSB के लिए, दिस वाज द 8 अपॉन 8 कितना आएगा? इट विल बी 450 watt, आई थिंक इट विल बी 450 watt, so this is P USB1 और P LSB1, और अगर ये 450 से 1250 में से गए तो P USB2 या P LSB2 कितना आ जाएगा? ये फॉर्मूला वहीं से जो सिंगल टोन है वहीं से LSB2 कितना आ जाएगा? दैट इज 800 वाट, क्योंकि दोनों मिला के 800 प्लस 400 1250 को उठाना है। डन, लिख लीजिए इसको। लिख लीजिए इसको। This is all about the numerical related to DSB-SC. Now we will talk about the generation of this. How we can generate real time DSB-SC. The method of generation of DSB-SC. The method of generation of DSB-SC. Next is the method of generation of DSB-SC. Method of generation of DSB-SC. Okay, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, वापस मैं नीचे से लिखता हूँ। Method of generation of DSB-SC. There are two methods: balance modulator or we can say ring modulator. Both are called as the product modulator. Basically, this is the method is product modulator. Product modulator से हम इसको generate करते हैं. There are two types of product modulator. One is balance modulator and one is the ring modulator. We will read about each one: balance and ring, both. ठीक है, को लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। Okay, let me start with the first one, balance modulator. बैलेंस मॉड्यूलेटर जो होता है, बैलेंस मॉड्यूलेटर जो होता है उसका सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम पढ़ना होता है। व्हाट इज ब्लॉक डायग्राम? It's very easy to read the to make the diagram. This is your message signal MT. You can say this is the message signal MT,
pass through the AM1 जहां से हमने amplitude modulation 1 AM1 modulator amplitude modulation किया अपने 1, then this is the 180-degree phase shift phase and it is applied to amplitude modulated by second amplitude modulation, and this is that is ASD cos 2 pi fct AC cos 2 pi fct, और यहां से जो रिजल्टेंट आएगा सम एंड माइनस this is minus, we will get the result as DSBC. Clear? This is the block diagram of this. अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, अभी 2 मिनट में अपन कर लेते हैं इसको. इट्स वेरी इजी. बेसिकली 2 मॉड्यूलेटर्स, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि there are 2 amplitude modulator connected in balance to generate DSB, to generate DSBSC. तो ब्लॉक डायग्राम को बनाइए, फिर उसको समझते हैं. दैट्स वेरी इजी, वेरी इजी. बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान. बनाइए इसको, बिल्कुल आसानी से आप एक्सप्रेशन निकाल सकते हो DSBSC का. इसको बनाइए. बना लिया आपने. देखो बहुत सिंपल है. दिस सिग्नल यहाँ जो मिलने वाला है, देखिए एम्प्टी मिलने वाला है, यही एम्प्टी, और यहाँ जो मिलने वाला है वो माइनस एम्प्टी मिलने वाला है. बाकी यहाँ से अब देखो आगे समझते हैं इसको. यहाँ का आउटपुट जरूरी है और यहाँ का आउटपुट जरूरी है, क्योंकि यहाँ का आउटपुट आप मान लो S of AM1, यहाँ का आउटपुट मान लो S AM2, और इन दोनों का आपको प्लस माइनस करना है तो आपको SDSBSC मिल जाएगा. तो यहाँ से यहाँ बेसिकली यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए SM AM माइनस SM2, तो ये आपको मिल जाएगा DSBSC, क्योंकि इधर से प्लस यहाँ से जाके माइनस. क्लियर? ठीक है. तो कैसे करें इसको? दैट्स वेरी सिंपल. इसको डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि हमारी पूरे 15 स्लाइड्स हो चुकी है. एक बार इसको लिख लो, क्योंकि फिर ये मिलेगा नहीं अपने को, वापस मिलेगा नहीं. तो वी कैन ड्रॉ इट वेरी इजीली. दिस प्रॉब्लम इज वेरी इजी. ओके, द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट इज, आगे चलें. इसको डिलीट मारते हैं थोड़ा सा. नाउ अब अगर अपन देखें ध्यान से तो होता क्या, देखो S of AM1, ये सिग्नल क्या होगा, दिस सिग्नल विल बी AC 1 plus KA MT
into cos 2 pi fct, cos 2 pi fct। ये फर्स्ट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का के बाद आउटपुट मिलेगा अपने को बैलेंस मॉड्यूलेटर में। दूसरे वाले से क्या आउटपुट मिलेगा, क्योंकि अपन ने 180 डिग्री के फेज शिफ्ट के साथ दिया था, तो AC 1 माइनस mt की जगह क्या हो जाएगा, माइनस mt, दैट इज माइनस k इंटू mt इंटू कॉस 2 पाई fct। नाउ अब अगर अपन इसको आगे सोल्व करते हैं, s dsb जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज s of m1 माइनस s of m2। इफ यू डू दिस, अगर इसको आप सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इट विल बी 2ac ka mt cos 2 pi fct, cos 2 pi fct, यही आपका एक्सप्रेशन आएगा। नाउ इस वाले पार्ट में जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये अकेले mt cos 2 pi fct के साथ जो वाला पार्ट है, अगर अपन इसको जनरलाइज लिख दें कि 2ac into ka is equal to ac dash लिख सकते हैं, तो ये क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, दिस एक्सप्रेशन विल बी s dsb equal to ac dash mt cos 2 pi, this is same expression as the dsb ac signal. So this by this way we can generate with the help of balance modulator, balance modulator, clear, it's very easy। अगर आप concentrate करोगे तो it's very easy, very easy, clear। This is all about the balance modulator। With the help of balance modulator we can generate the dsb ac signal, dsb ac signal। Next is ring modulator, next is ring modulator। नेक्स्ट इज रिंग मॉड्यूलेटर। तो इसका नाम रिंग मॉड्यूलेटर क्यों रखा, दिस इज बेसिकली फॉर जनरेशन ऑफ DSB-SC। इसका नाम रिंग मॉड्यूलेटर क्यों रखा, बिकॉज देर आर 4 डायोड्स, 4 diodes, there are 4 diodes in the form of are connected in the form of ring, in the form of ring। तो रिंग की तरह 4 डायोड आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, रिंग मॉड्यूलेटर बोलते हैं, क्लियर। तो 4 डायोड कनेक्ट होके कैसे DSB-SC का आउटपुट देते हैं इसको हम समझेंगे। वेरी इजी सर्किट, वेरी सिंपल सर्किट, एंड वी कैन गेट द आंसर। ओके, दैट्स वेरी इजी सर्किट एंड वेरी सिंपल सर्किट, क्लियर। नाउ अब इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम फॉर द रिंग मॉड्यूलेटर, बेसिकली वी आर स्टडीइंग अबाउट द रिंग मॉड्यूलेटर। इसके लिए DSB-SC जनरेशन की बहुत सिंपल है, दिस इज सिंगल ट्रांसफॉर्मर, सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर, 1:1 रेशियो का ये है, दिस इज योर MT plus minus। Now, there are 2 diodes like this, connected like this, then there are 2 another diodes connected like this, this, and this will be like this, clear, and this is the output
This is the output. Clear? Now, this is the D1, this is G2, this is D3 and this is D4. ठीक है, और यहां से कनेक्ट करते हुए हम क्या लगाएंगे, कैरियर सिग्नल C of T. इसको थोड़ा सा तरीके से लिखते हैं अपन. दिस इज C of T. This C of T, that is AC cos 2 pi FCT. नहीं, इसको जरूरी नहीं है. दिस इज C of T. C of T अलग से बनाएंगे अपन इसका. दिस इज C of T. क्लियर? नाउ C of T जो है वो अलग से आपको स्पेशली दिया हुआ है लाइक दिस. C of T लाइक दिस. इसको ऐसे समझ सकते हो आप C of T को. This is -1 volt, this is 1 volt. This is -1 volt, this is +1 volt, and this is 0 level. So this is the C of T. इस तरीके की सिग्नल यहाँ से आपको इनपुट मिलेंगे रिंग मॉड्यूलेटर में. तो जब आपका रिंग मॉड्यूलेटर में ये जो इनपुट है यानी C of T है, it will decide कि डायोड will be forward bias or reverse bias. Who will decide? These carrier wave C of T. C of T will decide. C of T will decide diodes बायसिंग. ठीक है, डायोड की बायसिंग कौन डिसाइड करेगा? C of T डिसाइड करेगा. तो C of T से कैसे डिसाइड होगा? क्योंकि जब C of T पॉजिटिव होगा, अब देखिए, खुद देखिए, इफ C of T इज पॉजिटिव, इफ C of T इज पॉजिटिव, पहले डायग्राम को बना लीजिए, फिर इसकी वर्किंग को समझते हैं अपन. एक बार इसको समझ लीजिए, इसकी डायग्राम को बना लीजिए, फिर इसकी वर्किंग को समझते हैं. दैट्स वेरी इजी. इस डायग्राम को बना लीजिए, फिर इसकी वर्किंग को समझते हैं. क्लियर? देखिए बहुत सिंपल है, आप खुद एनालाइज कीजिए. अगर ये प्लस होगा, इफ दिस इज पॉजिटिव, what will be happen? For the C of T is positive, this is positive, this is negative, this is plus 1 volt. C of T is positive, this diode is forward bias and this diode is forward bias, but this diode will be reverse bias. ऐसा ही कुछ होगा ना. एक बार इसको बनाते हैं, वापस समझते हैं इसको आगे. ठीक है, क्लियर? तो यहाँ के जो C of T है उस पर डिपेंड करेगा कि डायोड का स्ट्रक्चर क्या है. आगे चलते हैं. तो सपोज C of T is positive. C of T अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? This is the empty. If C of T is positive, D1 will be, this is positive, this is positive point, so D1 and D2. So if suppose this point is positive, then this is forward bias, the diode is also forward bias, and these two diodes will be reverse bias because N side is there with the positive. Like this is open circuit. Clear? This will be open circuit. ओपन सर्किट में क्या होगा? तो यहां पे क्या होगा? दिस विल बी ओपन सर्किट. दिस डायोड D1 एंड D2 दोनों फॉरवर्ड बायस में होंगे एंड दिस विल बी रिवर्स बायस. D3 एंड D4 and this will be like this. This diagram will be like this, and this is the this, and
this. Clear? Now, what is the output? Output will be if this empty is here. Suppose this is the empty. This is the empty plus minus. Empty is here. The same empty will appear here 1:1 ratio है. तो ये empty यहाँ आएगा with empty. तो ये empty you can यूं यहाँ जाएगा और it will appear here with its empty. If C of t is positive, output is equal to empty. Clear? If C of t is positive, C of t is this voltage, at this point, C of t is positive. Got it? It means this will be the structure, and the conclusion is output will be empty. Output will be empty. But suppose if this is reverse, C of t is negative here, what will be happen? If C of t is negative, if C of t is negative, what will be happen? This, this, this is your empty, and this is you can say, suppose this is the sorry. This of C of t, and this diode will be open circuited because here is minus. If this is minus, this diode will be open circuit. Same here, this diode will be open circuited, and then finally this is minus, and this is these diodes. These diodes will be forward bias. Clear? This you can make with another color. You can make with another color like this. Diode is forward bias. This is the forward bias, and same here. This diode is forward bias. Now, this is the empty. Empty is here. Empty is here. Plus minus. This empty. This empty. Suppose with the another color I choose this. This is the plus minus. The plus and this minus. This plus goes to this, and this minus goes to this. And suppose the output the output will be plus यहाँ से यहाँ चला गया minus यहाँ से यहाँ चला गया यानी उल्टा हो गया that is minus plus and this is the empty. तो empty का opposite हो गया empty उल्टा हो गया. If C of t is negative, this is minus. तो यू भी लिख सकते हो minus of empty मिलेगा. Clear? और if C of t is positive हमें empty मिलेगा. Clear? This is the basic working of ring modulator. अब इससे जनरेट कैसे होता है वो कहानी आगे अपन समझते हैं. Clear? यहाँ तो कोई डाउट? Now next is suppose this is a waveform. Suppose the waveform like this.
this is plus 1 volt, this is minus 1 volt, and this is C of t, this is M of t. Clear? Now, अब जो जनरेट होके आएगा, that is, if this portion is multiplied with this portion, what will be happen? This portion will remain same. But if this portion is multiplied by minus, what will happen? This portion, then it will be like this. You can say like this. Like this. And जब इसके बाद वापस ये वाला पोर्शन है, इसको प्लस 1, तो ऐसा कैसा आएगा? लाइक दिस. देन फाइनली इफ यू विल इस पोर्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बी like this. This is the expression for DSB SP, and this is S of DSB is equal to MT into C of T. Clear? And this is DSB SC signal. Clear? So this is the DSB SC signal. Clear? Without. So this is the generation of, with the help of basically रिंग की फॉर्म में. बेसिकली यहाँ क्या है इस डायग्राम में? रिंग की फॉर्म में 4 डायोड, 4 डायोड्स. There are 4 diodes in the form of ring. 4 diodes in the form of ring is, so it is called as the ring modulator. Clear? Any doubt? Note down. This is the final waveform for DSB-SC signals generated. नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं डीमॉड्यूलेशन. क्या पढ़ने वाले हैं? डीमॉड्यूलेशन. बस. नाउ लेट्स सी synchronous distinction. Next is demodulation. Demodulation oblique detection. तो सबसे इंपॉर्टेंट डिटेक्शन जो अपने पहले पढ़ा, सिंक्रोनस डिटेक्शन. सिंक्रोनस डिटेक्शन या सिंक्रोनस डिमॉड्यूलेशन. इसका एक और नाम होता है कोहेरेंट डिटेक्शन. इट्स वेरी सिंपल. अगर इसका ब्लॉक डायग्राम अपन देखें तो बहुत ही सिंपल है. लेट्स सी द ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस. देखिए जो हमने जनरेट किया है, अब पहले हमने पढ़ा था जनरेशन, अब हम पढ़ रहे हैं डीमॉड्यूलेशन. तो जनरेशन में जो हमने जनरेट किया था वो किस में जाएगा? वो एक मल्टीप्लायर में जाएगा. स्टैंडर्ड डायग्राम में आप जानते ही हैं किसका? सिंक्रोनस डिटेक्शन का. दिस द मल्टीप्लायर बेसिकली. इसमें क्या देते हैं? इधर से लोकल ऑक्सीलेटर से हम क्या जनरेट करते हैं? AC cos 2 पाई FC3. तो प्रॉब्लम क्या होती है इसमें? यहाँ पे जो DSP में जो हमने कैरियर यूज किया था, उस कैरियर का फ्रीक्वेंसी और फेज, फ्रीक्वेंसी एंड फेज आप इसे लिख सकते हो F and phi should be same as the frequency and phase of this waveform. सिंक्रोनस डिटेक्शन का चैलेंज क्या है? सिंक्रोनस डिटेक्शन का चैलेंज यही है, सिंक्रोनस डिटेक्शन का चैलेंज यही है कि अल्टीमेटली हम जो लोकल ऑक्सीलेटर से क्या जनरेट कर रहे हैं? कैरियर वेव जनरेट कर रहे हैं. और जो हमारा ऑलरेडी DSB
सिग्नल जिसको हमें डीमोडुलेट करना है उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी सम क्वाड्रेचर नल इफेक्ट, जो कि हम आगे देख चुके हैं और पहले भी देख चुके हैं, आगे देखेंगे। ये सिग्नल किस में जाएगा? लो पास फिल्टर में चला गया अगर, हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। क्लियर? नाउ लेट अस सॉल्व द मैथमेटिक्स बिहाइंड दिस। दैट्स वेरी इजी। मैथमेटिक्स बिहाइंड दिस इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, बहुत आसानी से अपन इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो, ये मल्टीप्लायर का काम क्या होता है कि ये मल्टीप्लाई करता है, सिग्नल को मल्टीप्लाई करता है। तो अपन भी सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। डीएसबी सिग्नल अपने को पता है क्या होता है, AC cos 2 pi FCT से मल्टीप्लाई करेंगे डीएसबी सिग्नल को, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। लिख लिया आपने? नाउ नोट डाउन इट। अगर आगे चलें तो क्या है, देखो बहुत सिंपल है। मल्टीप्लायर का आउटपुट क्या आएगा? मल्टीप्लायर का आउटपुट आना चाहिए एस डीएसबी सिग्नल इंटू सी ऑफ टी। एस डीएसबी क्या होता है बेटा? दिस इज एसी इंटू एम टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी, यही होता है एस डीएसबी सिग्नल इंटू दिस इज टी इज एसी कॉस 2 पाई एफ सी टी। नाउ इस मल्टीप्लायर का जो ये आउटपुट आएगा वो क्या आएगा भाई? इट विल बी, तो मल्टीप्लाई अगर करेंगे अपन तो हमें क्या मिलेगा? दिस इज AC स्क्वायर MT cos स्क्वायर 2 पाई FCT, ये आएगा। अब देखो cos स्क्वायर को अगर आप ओपन करोगे, cos स्क्वायर को अगर आप ओपन करोगे तो क्या मिलने वाला है? as soon as you will open the cos square it will be AC square by 2 into MT 1 plus cos 4 pi FCT, and it will be AC square by 2 MT plus AC square MT by 2 into cos 4 pi FCT। लेकिन अब ध्यान से देखिए, हमें किसको किससे पास करना है? LPF से। इसको पास करना है LPF, क्योंकि LPF जो है, LPF लो पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी हमने क्या रखी है? लो पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी हमने रखी है लाइक दिस इज 0 एंड दिस इज FM, दिस इज लो पास फिल्टर। तो अगर आपको लो पास फिल्टर डिजाइन करना है तो 0 से FM का सिग्नल ही लेगा वो। 0 से FM का सिग्नल किसमें है? सिर्फ MT में है, क्योंकि ये तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है FC। तो यानी ये वाला पोर्शन तो ये लेगा ही नहीं, LPF रिजेक्ट कर देगा इसको। तो किसको पास करेगा? इसको पास करेगा, AC स्क्वायर बाई 2 इंटू MT। तो क्या करें? LPF का जो आउटपुट है वो क्या आएगा? AC स्क्वायर MT बाय 2। एंड अगर आप इसको फाइनली LPF के आउटपुट को एम्प्लीफिकेशन करोगे किसी पर्टिकुलर फैक्टर से, 2 अपॉन AC स्क्वायर के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट, सिंपल मल्टीप्लिकेशन या एम्प्लीफिकेशन करना है, यू विल गेट दिस। दैट्स वेरी इजी। बट रियल में ये इतना इजी नहीं है। रियल में ये इतना इजी क्यों नहीं है? क्योंकि दिखने में तो सर 2 लाइन में हो गया है, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि जो DSB SC सिग्नल है जो ऑलरेडी जनरेट हुआ है, उसकी सेम फ्रीक्वेंसी प्राप्त करना इज वेरी डिफिकल्ट विद द हेल्प ऑफ लोकल ऑक्सीलेटर। तो होता क्या है, कहीं ना कहीं हम कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस जरूर आ जाता है। तो अगर फेज डिफरेंस आ गया, तो करेंगे क्या? तो अब आगे देखते हैं कि अगर सपोज जो हमने लोकल ऑक्सीलेटर से जनरेट किया था, लोकल ऑक्सीलेटर का जो आउटपुट था वो विद फेज आता है, विद फेज डिफरेंस आता है। तो वो क्या आएगा? AC cos 2 pi FCT plus pi। देयर इज सम लोकल ऑक्सीलेटर, ये लोकल ऑक्सीलेटर ध्यान रखना,
एलपीएफ नहीं है, लोकल ऑक्सीडेंट, ये आ गया। तो फिर अल्टीमेटली जो आपका एलपीएफ का आउटपुट है वो पूरी कैलकुलेशन वो बदल जाएगा। वो क्या हो जाएगा, AC² 2 एमटी, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos5 से, अपन पहले भी देख चुके हैं। तो ये cos5 से आउटपुट लो पास फिल्टर का ये मिलने वाला है। अब अगर किसी ने किसी कारणवश अगर फाइव इज 90, then cos5 is equal to 0 and LPF output will be 0, and this is called as quadrature null effect. Quadrature null effect. This is called as quadrature null effect. लिख लीजिए इसको, समझ में आ गया? That's very easy. It is called as quadrature null effect. 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 लिख लिया? This is the drawback of this. तो सिंक्रोनस रिजेक्शन का ड्रॉबैक क्या है? यही तो ड्रॉबैक है सिंक्रोनस रिजेक्शन का, कि यहाँ पे क्वाड्रेचर नल इफेक्ट हमें मिलता है। नाउ नोट डाउन कर लिया? नेक्स्ट इज द एडवांटेज ऑफ DSBSC। लिखिए आप, क्या एडवांटेज हो सकते हैं DSBSC के? ट्रांसमिटेड पावर इज सेव्ड। सेव हुई, बहुत सारी सेव हुई, क्योंकि सर नो कैरियर यहाँ पे कोई कैरियर ही नहीं है, तो ट्रांसमिटेड पावर तो सेव होनी ही होनी है सर। नाउ दूसरा काम क्या किया, इट इज यूज्ड फॉर long distance communication. It is used for long distance communication. But आपको पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया रेडियो इसको यूज नहीं करता है। ऑल इंडिया रेडियो डू नॉट यूज DSB, क्योंकि इसका रिसीवर जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। रिसीवर जो है इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इज वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स। रिसीवर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इसको सर क्लियर? इसको नोट डाउन कर लीजिए। दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ DSBSC। नेक्स्ट ड्रॉबैक। ड्रॉबैक क्या है इसका? नंबर वन, डीमोडुलेशन इज कॉम्प्लेक्स। डीमोडुलेशन का बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इट नीड्स
high transmission bandwidth. क्लियर? क्योंकि बैंडविड्थ जो है वो अभी भी 2 FM ही है, जो कि सेम एज AM है, तो इसका मतलब ये बहुत लार्ज है। डीमॉड्यूलेशन कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि सिंक्रोनस डिटेक्शन में क्वाड्रेचर नल इफेक्ट आता है, डिजाइन करना भी अपने आप में बहुत टफ है, तो क्वाड्रेचर नल इफेक्ट प्रेजेंट। इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन है क्वाड्रेचर, इसका एप्लीकेशन है क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, आई एम जस्ट कमिंग। क्लियर है? डन? लिखिए आपने। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए। A message signal band limited to omega n hertz is frequency translated by multiplying with high frequency sinusoidal carrier of omega c hertz. Find relation between omega c and omega n such that resulting signal bandwidth is 1% of omega c. 1% of omega c. 1% of omega c. This is all great question. This question number gate. Solve it. सॉल्व कीजिए इसको।
सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। देखो वेरी इजी। क्या बोल रहा है? मैसेज सिग्नल इज बैंड लिमिटेड विद द ओमेगा एन एंड फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिटेड बाय द मल्टीप्लाइंग विद हाई फ्रीक्वेंसी साइनसॉइडल carry wave omega c hertz. Find relation between omega c and such that is bandwidth of omega c. Clear? Clear? The word is basically multiplying. Multiply कहाँ होता है? सीधे सीधे SDSV. SDSV is MT into CT. Clear? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसके लिए बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ इज 2FM 2 into ओमेगा, क्या दिया है उसमें? ओमेगा एन, जो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। नाउ ये आपको दिया हुआ है। अब ये कितना दिया हुआ है? इसके बोल रहे हैं कि देयर इज सिग्नल बैंड इज 1% ऑफ ओमेगा सी। 2 ओमेगा एन इज इक्वल टू 1%, यानी 1/100 इंटू ऑफ ओमेगा सी, ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ से ओमेगा सी और ओमेगा सी इज इक्वल टू 200 ओमेगा एन। इट्स वेरी इजी आंसर। गेट का क्वेश्चन है पुराना, बहुत आसानी से फिर सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसको नोट डाउन कीजिए, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। an AM signal is given by s of t equal to st cos omega ct plus 2 cos omega ct into omega mt for proper envelope detection. For proper envelope detection, minimum value of AC should be बताइए, सॉल्व कीजिए इसको। क्लियर? मिनिमम प्रॉपर एनुअल डिटेक्शन के लिए शर्त क्या है? अपन ने पहले ही बोला है, प्रॉपर एनवलप डिटेक्शन मेथड के लिए शर्त क्या है? आपने पढ़ा होगा, म्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। एनवलप डिटेक्शन तभी पॉसिबल है जब आपका म्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। सिंक्रोनस डिटेक्शन कहीं भी पॉसिबल है, लेकिन एनवलप डिटेक्शन सिर्फ म्यू लेस देन इक्वल टू 1 के लिए पॉसिबल है। कोशिश करो, कॉमन लीजिए, इसमें से सोल्व करते हैं अपन इसको। कोशिश कीजिए इसमें से कुछ कॉमन लीजिए cos ओमेगा ct एंड देन इसको डिजाइन करने की कोशिश कीजिए और यहाँ से म्यू फाइंड करने की कोशिश कीजिए। म्यू फाइंड करने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू सॉल्व इट। सोल्व करें इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्या है कॉमन, AC तो छोड़ दीजिए, AC cos ओमेगा ct कॉमन ले लेते हैं। सपोज AC कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, 1 प्लस
2 upon AC cos omega mt, ऐसा ही कुछ आएगा। ये सब टी को जस्ट रीअरेंज किया है, जस्ट रीअरेंज इट नाउ। अगर आप ध्यान से देखोगे, इट इज स्टैंडर्ड लाइक दिस, AC 1 plus 2 upon AC cos omega mt into cos ओमेगा ct, यही तो होएगा। तो cos ओमेगा mt, ये स्टैंडर्ड क्या मिल रहा है, ये एम, स्टैंडर्ड एम कंपेयर करोगे तो दिस इज 1 प्लस म्यू तो होता है, म्यू इनटू cos ओमेगा mt, तो दिस इज म्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, और म्यू की वैल्यू क्या है 2 अपॉन लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या पता लगा 2 इज लेस देन इक्वल टू AC, तो AC जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, मिनिमम 2 की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, मिनिमम वैल्यू इज 2, तो आंसर विल बी clear. This is also question from the gate. It's very easy, very easy. Note down it, very easy. Note down it. लिखिए, नोट डाउन कीजिए इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, और गेट का पुराना क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रॉम द गेट, गेट से आया हुआ क्वेश्चन है। It is the old question from the gate. लिखिए, डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट पॉइंट इज SSPSC। स्लाइड फिर पूरी हो चुकी है, वी हैव डिलीट इट। नो, हम पढ़ने वाले हैं SSBSC। अब इसको पढ़े क्यों, इसका एडवांटेज क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसको पढ़ना क्यों चाहिए। तो बहुत ही सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है। देखिए, सबसे पहले अगर S ऑफ AM की बात करें, उसका सिग्नल कैसा आता है, सिग्नल आता है सर, दिस इज 0 एंड दिस द कैरियर। तो रट गए होंगे स्पेक्ट्रम आपको, दिस द कैरियर, दिस इज FC, दिस इज FC प्लस FM, दिस इज here and the carrier. This is LSB, this is also LSB, this is USB, this is USB, और ये कैरियर सब होते हैं, कैरियर भी होता है, इसमें कैरियर भी है, LSB भी है और USB भी, तीनों है। नाउ नेक्स्ट, S ऑफ DSB, सेम चीज है, फर्क क्या है, ये कैरियर नहीं होगा, सिंपल यही चीज होगा, ये और यहाँ पे ये सेम चीज, 0 सेम, दैट इज माइनस FC प्लस FM, this is minus FC, this is minus FC minus FM, this is FC। यहाँ पे सिर्फ
USB, USB, this is LSB, this is LSB. तो यहाँ पे क्या क्या है? LSB एंड USB. एंड लास्ट अब हमें क्या करना है? देखो, काम की इन्फॉर्मेशन जो एलएसबी में होती है वही यूएसबी में होती है, तो क्यों ना अकेले अकेले यूएसबी को ले लेते? यूएसबी को लेने के लिए क्या करना है? एक फिल्टर लगाया अपन, एक बैंड पास फिल्टर लगा देते हैं. तो बैंड पास फिल्टर कैसा लगाए? ऐसा लगा लेंगे अपन, लाइक दिस, ये वाले फिल्टर. यूएसबी यूएसबी के लेने के लिए ऐसा फिल्टर लगा दें अपन इस पे. तो ये फिल्टर अगर अपन लगा दें, फिल्टर का नेचर क्या है? लाइक दिस, एफसी से लेके ये एफसी इधर के लिए बना लेते हैं अपन, उसके लिए बना लेते हैं. तो ये जो फिल्टर का नेचर है यहाँ पे, फिल्टर का नेचर क्या है? इट इज लाइक दिस, एफसी से लेके एफसी प्लस एफएम तक. सेम इधर माइनस एफसी वाला, ये वाला फिल्टर. तो इस फिल्टर से एक काम कर सकते हैं अपन. अपन क्या काम कर सकते हैं? दिस दिस, ये एफसी एंड दिस इज एफसी माइनस, this is minus fc, so this is minus fc minus fm, and here this and this is fc and this is fc plus fm. Clear? So this is us, this is also usb. ये भी है, क्या है? तो आप ये भी ले सकते हो और आप ये पोर्शन भी ले सकते हो. केवल इन दोनों का पोर्शन भी लेते हो आप. अगर इन दोनों पोर्शन को लेते हो लाइक दिस, तो आपका कैसा बनेगा? दिस. अगर आप इन दोनों पोर्शन को लेते हो तो इट विल बी लाइक दिस, दिस एंड हियर दिस. So this is also SSB. This is FC and this is FC minus FM. This is minus FC and this is minus FC. Sorry, minus FC. Minus FC plus FM. Clear? This is, या तो ये भी SSB है और ये भी SSB. यहाँ पे दोनों ही LSB है और यहाँ पे दोनों ही है. तो इन्फॉर्मेशन जब दोनों में सेम है, इसमें और उसमें, तो क्यों दो दो लेके जाए? एक ही लेके जाए तो फायदा क्या होगा? देखो यहाँ पे जो बैंडविड्थ आई है, यहाँ पे जो बैंडविड्थ आई है कितनी आई है? बैंडविड्थ बताओ मुझे. दिस माइनस दिस, हाई फ्रीक्वेंसी दिस इज इक्वल टू एफएम. और यहाँ पे भी जो बैंडविड्थ आई है दैट इज, यानी एसएसबी, दिस इज एसएसबी. इसमें बैंडविड्थ की जो रिक्वायरमेंट है वो हाफ हो जाती है. बैंडविड्थ जो रिक्वायरमेंट है एसएसबी के लिए एफएम है, यानी 50% सेव with respect to m and m and ds. और साथ में पावर तो सेव करेंगे क्योंकि यहाँ पे कैरियर नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आधी ही पावर रहेगी क्योंकि यहाँ केवल यूएसबी है या फिर एलएसबी है. तो आधी ही पावर हमारे पास रह गई. सिर्फ हमें डीएसबी के बाद एक बैंड पास फिल्टर का यूज करना था और हमारे पास एसएसबी जनरेट हो गया. क्लियर? इस पूरी कहानी को नोट डाउन कर लीजिए. पूरी कहानी को आप नोट डाउन कर लीजिए. लिख लीजिए इसको, नोट डाउन कीजिए. दीज आर सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एसएसबी. कि एसएसबी जनरेट क्यों किया? बेसिकली द बिगेस्ट एडवांटेज द पावर एंड बैंडविड्थ. क्लियर?
लिख लिया आपने? नोट डाउन कीजिए इसको। नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अल्टीमेटली फायदा क्या हुआ है? फायदा ये हुआ है कि बैंडविड्थ एंड पावर इज सेव with respect to DSV and AM. क्लियर? क्योंकि वहां बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट कितनी है डीएसपी में? 2 FM। यहाँ पे बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट कितनी है? 2 FM। लेकिन यहाँ पे एसएसबी में कितनी है? FM। 50% बैंडविड्थ आपने वैसे बता ली, और पावर भी सीधे सीधे डीएसपी का आधा कर लिया आपने। डीएसपी के मुकाबले आधा पावर आपने सेव कर लिया, क्योंकि एक ही बैंड आपको भेजना पड़ेगा। क्लियर है? नाउ अब एक नोट लिखिए, कंपेयर टू डीएसपी एससी, कंपेयर टू डीएसपी एससी, compared to DSB-SC, 50% of bandwidth and 50% of transmitted power will be saved, and 50% of transmitted power will be saved, and 50% of transmitted power will be saved in SSB. Next point लिखिए, the power saved in DSB, SSB, DSB and SSB compared to AM, depends on modulation index, depends on modulation index, depends on modulation index. Clear? Now single tone sorry, now what is single tone SSB? सिंगल टोन एसएसबी के लिए बहुत सिंपल है। एस ऑफ डीएसबी अपन जानते हैं, डीएसबी क्या कहता है? वो कहता है कि सर AC इंटू AM बाई 2, AC इंटू AM बाई 2 cos 2 पाई FC प्लस FM प्लस AC इंटू AM बाई 2 cos 2 पाई FC माइनस FM। अब देखो दिस इज यूएसबी, दिस इज एलएसबी। अब अपने को एक ही तो लेना है, इनमें से एक ले लो तो वो एसएसबी हो जाएगा। तो एक ले लेते हैं सर, एक ले लेते हैं, इसको जनरलाइज ऐसे ले सकते हैं AC इंटू AM बाई 2 cos 2 पाई FC प्लस माइनस दोनों लिख लिया, एक ले लेंगे कोई भी इंटू T। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, ये ले लो तो यूएसबी और ये ले लो तो एलएसबी। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एसएसबी, SSB, expression for SSB. Note down it. Note down it. नेक्स्ट जिसकी डिटेलिंग है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन, क्योंकि यहाँ अपना ऑलमोस्ट टॉपिक ओवर हो रहा है। नेक्स्ट इसकी जो डिटेलिंग है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। देन इसके आगे का जो पार्ट है, कैसे एसएसबी जनरेट होता है, कैसे उसको डिमोडुलेट किया जाता है, वी विल रीड इन द नेक्स्ट क्लासेस। अगर आपने लिख लिया, थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।